زین آباد قومی شاہراہ کے ماہانہ جشن کے تحت دکن ٹول پلازا لمیٹڈ کی جانب سے روڈ سیفٹی آگاہی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں روڈ سیفٹی سے متعلق اہم قوانین اور ٹریفک ضوابط پر سختی سے عمل کرنے سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ خاص طور پر ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال، رفتار پر قابو رکھنے، نشے کی حالت میں گاڑی نہ چلانے کو ترجیح دینے کا مشورہ دیا گیا۔ گاڑی چلانے والوں میں فلائرز اور اسٹیکر تقسیم کیے گئے۔ یہ اقدام سڑک حادثات کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس موقع پر موٹر وہیکل انسپکٹر نریندر بھی موجود تھے اور روڈ سیفٹی کے حوالے سے قیمتی مشورے بھی دیے۔ اس موقع پر DTPL کے مینیجر وجیندر ریڈی، ناگراجو سدھو اور دیگر افراد موجود تھے۔ بانسوارہ حلقہ اسمبلی میں 341 CM ریلیف فنڈ کے مستحقین میں 1,10,05,500 روپے کے چیک اسمبلی پوچرام سریواس ریڈی کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ایگرو چیئرمین بالراج کرشنا ریڈی، گنگادھر، سابق کونسلر روہت، سابق MPP اعجاز، شادی خانہ چیئرمین حافظ عبدالوہاب، داؤد، غوث اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مولانا عبدالحفیظ قاسمی، سرپرست جمعیت علماء جنگاؤں ضلع نے بتایا ہے کہ 12 جنوری بروز پیر صبح 9 بجے عظیم الشان جلسہ اصلاح معاشرہ کماکشی فنکشن ہال جنگاؤں پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ مہمانان خصوصی حافظ پیر خلیق صابر، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء تلنگانہ مولانا عبدالستار ورنگل، نائب صدر جمعیت علماء تلنگانہ مولانا مفتی تجمل حسین قاسمی، نائب صدر جمعیت علماء حیدرآباد مولانا عبدالعظیم قاسمی، صدر جمعیت علماء ورنگل، مفتی محمد ذکریہ، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ورنگل اور دوسرے بھی شرکت فرمائیں۔ آج کل کے حالات کو مدنظر رکھتے علماء جلسہ اصلاح معاشرہ کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں۔ جنگاؤں کے علاوہ آس پاس کے گاؤں کے مسلمان بھی جلسے میں شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنایا جائے۔ اپیل کی جاتی ہے کہ خواتین کے لیے یہاں علیحدہ پردے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ضلع جنگاؤں میں ضلع پریشد ہائی اسکول اردو میڈیم، گرلز انگلش میڈیم 9 تعمیر شدہ 6 کمروں پر مشتمل عمارت بلڈنگ کا افتتاح جنگاؤں ضلع کلیکٹر جناب رضوان بادشاہ شیخ نے کیا۔ ضلع جنگاؤں کا واحد اردو میڈیم اسکول ہے جہاں پر اردو کے ساتھ ساتھ انگلش میڈیم کی تعلیم دی جاتی ہے، اور یہ بلڈنگ کی تعمیر فرینکٹ ٹیمپٹ بائی راؤنڈ ٹیبل انڈیا کی مالی تعاون سے کی گئی۔ اس موقع پر ضلع کلیکٹر جنگاؤں رضوان بادشاہ شیخ نے کہا، بہتر سے بہتر تعلیم دینے کے لیے اساتذہ کی ہمت افزائی کی اور کہا، طلباء کے آج کے دور میں اچھی معیاری تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہو گیا ہے۔ سدیپیٹ ضلع کے مدور منڈل میں آج عرس تقاریب نہایت عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ عرس کمیٹی صدر محمد جیلانی صدیقی کی نگرانی میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام لوگوں نے شرکت کی۔ چینی مانجھے کی فروخت یا استعمال کے خلاف سخت کارروائی، کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS کا انتباہ۔ کریم نگر پولیس کمشنریٹ نے سنکرانتی کے دوران ممنوع چینی مانجھا، نائلون یا مصنوعی دھاگے کی فروخت اور ذخیرہ کرنے استعمال کرنے پر سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس موقع پر کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے واضح کیا کہ چائنیز مانجھے پر مکمل پابندی ہے جو ماحول اور زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ تیز دھار نائلون دھاگے کی وجہ سے پیدل چلنے والے 2 پہیہ جانے والے زخمی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چینی مانجھے کی فروخت کو روکنے کے لیے کمشنریٹ میں خصوصی انفورسمنٹ ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں، اور کہا دکانات اور گوداموں کی مسلسل نگرانی بھی کی جا رہی ہے۔ کمشنر نے متنبہ کیا کہ قواعد کی خلاف ورزی کرتے چینی مانجھا بنائے جانے، فروخت کرنے یا ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف سخت فوجداری مقدمات درج کیے جائیں گے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر MLC ڈنڈے وٹھل کی رہائشگاہ پر آج پروگریسو ریگنگز ٹیچرز یونین قائدین سیواس انیل، راکیش، سمبھا، شیوراؤ، پرکاش، راکیش کے علاوہ خواتین ٹیچرز کے ساتھ مل کر MLC ڈنڈے وٹھل نے 2026 سال کی ڈائری اور کیلنڈر کی رسم اجرائی عمل میں لائی۔ ضلع ریڈیو اسمبلی مدن موہن کی موجودگی میں آج منڈل سداشیو نگر کے امرولا بنڈا پنچایت سرپنچ اور نائب سرپنچ اور وارڈ ممبرز نے کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ رکن اسمبلی نے تمام کو پارٹی کھنڈوا ڈال کر استقبال کرتے اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھانے کا مشورہ دیا۔ کریم نگر کے حسین پورہ میں واقع نیشنل پیلس فنکشن ہال میں SIR سمر انٹینسو ریویژن پروگرام کے تحت ووٹر فہرستوں کی نظر ثانی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر عوام کو آگاہ کیا گیا کہ جن کے پاس 2002 میں
वोट मौजूद है उनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में मैप किए जाएंगे। हुकाम ने मजीद बताया कि ऐसे वोटर्स अपने बेटों और बेटियों के नाम बतौर प्रोगेनी वोटर लिस्ट में शामिल करवा सकते हैं। आज दफ्तर बल्दिया बोधन में कमिश्नर बल्दिया बोधन जयदेव कृष्णा ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की मीटिंग तलब की और मीटिंग के दौरान MIM टाउन सदर मीर रियाज अली ने कमिश्नर बल्दिया को वाकिफ करवाया। बताया कि इससे पहले बोधन और कलेक्टर ऑफिस इस्लामाबाद में तलब करदा सियासी जमातों के कायदे के इजलास में पेश किए गए मुतालबात पर किसी हद तक मुस्बत इक़दाम उठाए गए हैं। पता न चल सका। इलियास दरी ने फिर से उनकी पार्टी की जानिब से तजावीज़ पेश की और बताया हर एक बल्दी हल्के में पोलिंग बूथ जहां तक हो सके वार्ड के दरमियान में कायम किया जाना चाहिए। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक निजामाबाद पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर आज बोधन टाउन हदूद में पतंग की दुकानात की वसी पैमाने पर तलाशी ली गई। ओल्ड बस स्टैंड के इलाके में एक पतंग की दुकान से चाइनीज़ मांझा बरामद हुआ। दुकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। CI बोधन ने बोधन टाउन के आवाम से अपील की है कि जो भी चाइनीज़ मांझा फरोख्त करे इस्तेमाल करे इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मदन मोहन से आज मंडल सदाशिव नगर के कलवराल और मंडल राजमपेट के अनारम पंचायत से नौमुंतखब सरपंच, नायब सरपंच और मेम्बरान ने गैर सरकारी मुलाकात करने पर रुकन असम्बली ने तमाम को तहनीत पेश की और कहा तमाम पंचायतों के सरपंच अवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए काम करते रहें और अवामी मसाइल हल करने के लिए उन्हें भी दस्तयाब रहने का मशवरा दिया। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड के चेयरमैन के राविंदर राव के हाथों सिलसिला जिले के नवीरापेट में वाक़े KG to PG एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में तिल संक्रांत की तातीलात के मौके पर SGMPL क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर निखिल गौड़ के अलावा नारायण राव, वेंकट स्वामी, कमलाकर रेड्डी, P श्रीमती, हमीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, राजा नरसू, देवेंद्र के अलावा श्रीवास्तव में दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर राविंदरों ने कहा खेल कूद नौजवानों में जिस्मानी फिटनेस के साथ साथ नज़्म-ओ-ज़ब्त, भाईचारा और मुस्बत मुकाबले के जज्बे को फरोग़ देते हैं। इस्लामाबाद के सीनियर कांग्रेसी क़ायद सैयद नजीब अली एडवोकेट ने रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की जानिब से हुज़ूर निज़ाम से मुताल्लिक़ नाज़ेबा और इश्तिहार अंगेज़ बयानात की सख्त मज़म्मत की और कहा ऐसे बयानात नफरत फैलाने और पुरअमन माहौल को ख़राब करने के बराबर माने जाते हैं। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि अरविंद के बयानात पर नोटिस लेते हुए कार्रवाई की जाए। सैयद नजीब अली ने कहा कि हुज़ूर निज़ाम के दौर में निज़ाम सागर प्रोजेक्ट, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अस्पताल, रेलवे और सनतों के क़याम समेत बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए गए। रियासती हुकूमत के मुशीर P सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तजुर्बेकार असातिज़ा मौजूद हैं। अगर वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में तालीम फराहम करे तो 10वीं जमात के इम्तिहानात में 100% नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट मुनक़िदा सावित्री बाई फुले की 195वीं जयंती तकरीब से खिताब कर रहे थे। रियासती कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राम भोपाल ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद पर सख्त तनकीद की और कहा अवाम के दरमियान मजहबी नफरत को हवा देने का तर्ज अमल तर्क कर दें। कांग्रेस पार्टी ऑफिस से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। राम भोपाल ने कहा डी अरविंद की जानिब से निज़ाम सरकार के नाम को निज़ामाबाद की अदम तरक्की, निज़ाम सागर में पानी की किल्लत और निज़ाम शुगर फैक्ट्री की बंदी से जोड़ना तारीख़ी हक़ाइक़ को मस्क करने के बराबर है। मस्जिद खुर्द छोटी मस्जिद सूबेदारी हनमकुंडा वरंगल में मोहम्मद अब्दुल जलील खान और जवान मोहल्ला के ज़ेर एहतमाम बज़ में पाबंदी नमाज फजर की जानिब से तलबा और अहले मोहल्ला के लिए जलसे तक़सीम इनामात मुनक़्क़िद हुआ था जो गुज़िश्ता रोज़ बाद नमाज मग़रिब मुनक़्क़िद हुआ था। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन क़ासिमी मदनी ने तलबा को नमाज की पाबंदी की तलक़ीन की और बाद मीडिया से बातचीत की, जबकि नमाज फजर की पाबंद 10 तलबा को ब्रांडेड न्यू साइकिलें भी तक़सीम की गईं। ज़िले कामेडी के मंडल पिटलम के ज़िले परिषद बॉयज़ स्कूल पिटलम के 10वीं जमात के तालिब इल्म श्री राम इंदिरा गांधी स्टेडियम कामेडी में एथलीट्स इंडोर 20 लड़कों के सेक्शन में 400 मीटर दौड़ मुकाबले में पहला इनाम हासिल किया और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। फिजिकल डायरेक्टर संजीव सर के इत्तला के मुताबिक श्री राम तालिब इल्म को आदिलाबाद स्टेडियम में 18 जनवरी को मुनक़्क़िदा रियासती सतह के एथलीट मुकाबलों के लिए भी मुंतखब कर लिया गया है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल देवी सिंह, तदरीसी टीम, गांव के सरपंच और गांव के बुजुर्गों ने तालिब इल्म को मुबारकबादी पेश की और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ज़िले मंचियार के चिनूर में जामे मस्जिद के ज़ेर एहतमाम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ कॉम्पिटिशन मुनक़्क़िद किया जा रहा है। हर उम्र के मर्द ख़वातीन इसमें हिस्सा ले सकते हैं और 2 ज़ुबानों में कॉम्पिटिशन होगा, उर्दू और ह्यूमर इंग्लिश में। खिताब इमाम जामे मस्जिद मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सरफराज अहमद नूरी ने सियासत टीवी से बात करते तमाम तफसीलात बताई और कहा कि 2 मरहलों में कॉम्पिटिशन होंगे, जैसा कि पहला मरहला 18 जनवरी पर इतवार को होगा और दूसरा मरहला
25 जनवरी बरोज इतवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगा। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर केटीआर को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होने वाली इंडिया कॉन्फ्रेंस के 23वें एडिशन में खिताब के लिए मदऊ किया गया। ये दावतनामा हैदराबाद और तेलंगाना में आलमी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और रियासत को टेक्नोलॉजी के मरकज़ के तौर पर मजबूत करने में उनकी मिसाली किरदार के एतराफ़ में दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में 14 और 15 फरवरी को होने वाली इस कॉन्फ्रेंस का मौजू वो हिंदुस्तान जिसका हम तसव्वुर करते हैं रखा गया है। ये अमेरिका में तलबा की जानिब से मुनक़िद की जाने वाली सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंसों में से एक है, जिसमें माहिरीन तालीम, कारोबारी शख्सियात, पॉलिसी साज और सकाफती नुमाइंदे शिरकत कर। प्रेस रिलीज के मुताबिक केटीआर की शिरकत तेलंगाना को टेक्नोलॉजी और जदीद तराजी के मरकज़ के तौर पर आलमी नक्शे पर लाने की कोशिश की अक्कासी करती है। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में तर्ज हुक्मरानी और अवामी पॉलिसी पर बात होगी, जबकि दूसरे दिन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में कारोबार और आलमी मईशत का तबादला ख्याल किया जाएगा, जहाँ केटीआर और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। संक्रांति त्यौहार के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद की वजह से कौमी शाहरों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। दूसरे साल की तरह इस बार भी वही मनाज़र देखने को मिल रहे हैं, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराहें गाड़ियों से खचाखच भर गई। खुसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहरा पर वाक़े पतंगी और कोल्लापाटी टूल प्लाजा पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें लग गई। अगरचे फास्ट टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद में इस कदर ज़्यादा है कि मुसाफिरों को टूल पार करने घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हुक्काम ने इजाफी काउंटर्स भी खोले, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आ रही। लोग अपने खानदानों के साथ निजी कारों और बसों के जरिए सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को मुस्लिम नाम से मौसूम शहर निज़ामाबाद से ज़्यादा तकलीफ है। जब भी इंतखाबात आते हैं वो इस शहर का नाम तब्दील करने का ऐलान करके नफरत का इजहार करते हैं, ताकि हिंदू वोटों को मुत्तहिद किया जा सके। रियासत में बल्दियाती और कॉरपोरेशन के इंतखाबात की तैयारियां शुरू हो चुकी है। निज़ामाबाद रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर कब्जा करके कौंसिल के पहले इजलास में निज़ामाबाद का नाम तब्दील करके अरविंद रखने की करारदाद मंजूर करने का ऐलान किया। रुकने पार्लियामेंट के ताज़ा बयान तरक्याती एजेंडे से आरी और इश्तिहार अंगेज सियासत की खुली मिसाल है। वाज़ेह है कि असेंबली हो या लोकसभा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात, हर इंतखाब से कबल अरविंद इस तरह का लब व लहजा इस्तेमाल करके अवाम के जज्बात को भड़काते हैं, जबकि शहर निज़ामाबाद की सदियों पुरानी शनाख्त है। तारीख और तहजीब को नज़रअंदाज करके सियासी फ़ायदे को तरजीह दी जा रही है। ड्रग्स केस में फिल्म एक्टर नौदीप को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर करदा ड्रग्स केस को पुरादम कर दिया। गुड्डी मलकापुर पुलिस की जानिब से दर्ज करदा मुकदमे को मनसूख करते हुए अदालत ने कहा कि नौदीप के कब्जे से नारकोटिक्स अशिया की दस्तियाबी के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। नौदीप के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म एक्टर का नाम मुकदमे की FIR में दर्ज है और उनके कब्जे से मुंशियात दस्तियाब नहीं हुए। उन्होंने कहा कि धावे के दौरान जब्त करदा अशिया में किसी का ताल्लुक नौदीप से नहीं है। अदालत ने दलाल से इत्तेफाक करते हुए कहा कि सबूत के बगैर मुकदमे को जारी रखना दुरुस्त नहीं। नौदीप के कब्जे से ड्रग्स दस्तियाब नहीं हुए, लिहाजा अदालत ने मुकदमे को मनसूख कर दिया। वाज़ेह है कि सितंबर 2023 में नौदीप के खिलाफ पुलिस ने ड्रग्स का मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार किए गए अफराद में नौदीप को 39वें मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया। बताया जाता है कि रामचंद नामी शख्स की गवाही पर नौदीप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सिकंदराबाद के सरकारी कॉलेज में आज इस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब तलबा ने लेक्चरर्स के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इंटर की एक तालिबा की मुश्तबा मौत के बाद कॉलेज में कशीदगी फैल गई। तलबा और लड़की के वालिदैन का इल्ज़ाम है कि लड़की की मौत लेक्चरर्स के हरासने के सबब हुई। 17 साला वर्षनी जो मलका डिग्री जूनियर कॉलेज में इंटर ज़ेर तालीम थी, कल कॉलेज ताख़ीर से पहुंची। वर्षनी के ताख़ीर से कॉलेज पहुंचने पर खातून लेक्चरर्स ने वर्षनी को हिरासा किया। ताख़ीर से कॉलेज पहुंचने की वजूहात को बयान करने की शर्त रखी। लड़की ने लेक्चरर्स को बताया कि वो नुस्वानी मसाइल का शिकार है। इस मसाइल के सबब वो ताख़ीर से पहुंची। खातून लेक्चरर्स ने जिस वक्त वर्षनी को रोका और इससे वजाहत तलब कर रहे थे, इस वक्त साथी तालिबात भी मौजूद थे। बावसूख ज़राए के मुताबिक लेक्चरर श्री लक्ष्मी और मधुरिमा ने वर्षनी के साथ रुस्वाकुन अमल इख्तियार किया और साथी तलबा के सामने उसकी रुसवाई की। इस बात से शदीद दिलबर्दाश्ता वर्षनी अपने घर चली गई और कॉलेज में पेश आए इस वाक़ये से अपनी वालिदा को वाकिफ़ करवाया, जो काफ़ी मायूस हो गई थी। उसकी वालिदा ने अपनी बच्ची को दिलासा दिया और हिम्मत अफजाई की। इस दौरान लड़की की सेहत बिगड़ गई और उसको दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान फौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहकीक़ात है।
दादा से मुतासिर होकर पोती ए ललिता श्रीवानी ने खुद से पढ़ाई करते हुए बगैर किसी कोच ग्रुप 1 मुलाजिमत के लिए मुंतखब हुई और पोचमपल्ली म्यूनसिपैलिटी की ट्रेनिंग कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही, जो नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। श्रावणी ने बताया कि इंटरमीडिएट के दौरान ही वो अपने दादा एम शंकर शास्त्री से बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, जो केरला के DGP की हैसियत से रिटायर्ड हुए थे। अपने दादा की दयानतदारी, उन्हें मिलने वाले एजाज़ात और आवाम की जानिब से एहतराम को देखते हुए सरकारी मुलाजिमत हासिल करने का फैसला किया था। डिग्री मुकम्मल करने के बाद इन्होंने UPSC इम्तहान के लिए दरख्वास्त दी। इस दौरान 2022 में TSPSC की जानिब से ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसके लिए इन्होंने दरख्वास्त दी और इब्तिदाई इम्तहान में कामयाबी हासिल की। ताहम मेंस के दौरान पेपर लीक होने के सबब ये नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। बाद दोबारा जारी हुआ, लेकिन अदालत में मुकदमात के बाद उसे एक बार फिर रोक दिया गया। ललिता श्रीवानी ने बताया कि तीसरी बार ग्रुप 1 का नोटिफिकेशन जारी होने पर इन्होंने बगैर किसी कोचिंग के खुद ही तैयारी की, खुद ही नोटिस तैयार किए और 1 साल तक घर पर मुतालिया किया। इम्तिहान की तैयारी के दौरान अपने आप को मोबाइल फ़ोन से दूर रखा। इतना ही नहीं, शादी ब्याह और दीगर तकारीब और गैर ज़रूरी मशागिल से खुद को दूर रखा। अपनी मेहनत और नज़्म व ज़ब्त के नतीजे में इन्होंने पहले ही कोशिश में रियासती सतह पर 151वां रैंक हासिल किया और म्यूनसिपल कमिश्नर ओहदे के लिए मुंतखब हो गई। कांग्रेस हाईकमान के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट्स के नामों को खतियत देना इम्तिहान बन चुका है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तश्कील के ज़िम्मन में नायब सदर और जनरल सेक्रेटरीज के तक़र्रुरात अमल में लाए गए, जबकि वर्किंग प्रेसिडेंट्स के ओहदे पर कायदीन के दरमियान मुसाबकत के सबब हाईकमान ने तक़र्रुरात का अमल टाल दिया था। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने अपने करीबी कायदीन के नाम इस ओहदे के लिए पेश किए। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मीनाक्षी ने नामों को खतियत देने के लिए चीफ मिनिस्टर से 1 से ज़ायद मरतबा मुशावरत की, लेकिन हाईकमान की जानिब से नामों को मंजूरी नहीं दी गई। बताया जाता है कि पार्टी के मुख्तलिफ ग्रुप्स की जानिब से पेश करदा नामों को हाईकमान के पास रवाना करते हुए क़तई फैसला पार्टी सदर पर छोड़ दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तंजीमी उमूर KC वेणुगोपाल ने तयख़ुन दिया है कि सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे से मुशावरत के बाद नामों का ऐलान करेंगे। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अराजियात से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि रियासत में इस वक्त रियल इस्टेट ब्रोकर के हाथ में चले गए और हुकूमत एक के बाद एक तालीमी इदारों के अराजियात को हथियाने की कोशिश कर रही है। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा ने हैदराबाद के मंत्री नगर में KTR से उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की, जिसमें यूनिवर्सिटी की 50 एकड़ अराजी पर कांग्रेस हुकूमत की मुबैना साजिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि यूनिवर्सिटी की कोई ज़मीन खाली नहीं है और मुस्तक़बिल की तोसी के मंसूबे पहले से तैयार है। इसके बावजूद हुकूमत दांस्ता तौर पर उर्दू यूनिवर्सिटी विखार को मजरूह करने की कोशिश कर रही है। KTR ने याद दिलाया कि माजी में भी उर्दू यूनिवर्सिटी के अवामी मुफाद में शहर हैदराबाद के लिए आउटर रिंग रोड की तामीर के लिए 32 एकड़ अराजी दी थी। साथ ही ख्वाजागुड़ा से नानक रामगुड़ा तक लिंक रोड की तामीर के लिए 7 एकड़ अराजी फराहम की थी। उन्होंने वाज़ेह किया कि BRS ने कभी भी अवामी ज़रूरियात के लिए अराजियात के हसूल की मुखालिफत नहीं की, लेकिन तालीमी इदारों की अराजियात को रियल इस्टेट के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। प्रोफेसर जयशंकर ज़राई यूनिवर्सिटी में BSc ज़राअत तीसरे साल के सेमेस्टर फाइनल इम्तहान के सवालिया पर्चे के लीक होने का एक संगीन इंकशाफ हुआ है। ये मामला इस वक्त मंजर आम पर आया जब यूनिवर्सिटी के ज़ेर इंतज़ाम जगतियाल ज़राई कॉलेज में एक सर्विस उम्मीदवार को इम्तहान के दौरान नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। बाज़ तहक़ीक़ात में पता चला है कि सवालिया पर्चा पहले ही लीक हो चुके हैं। तहक़ीक़ात के दौरान ये बात सामने आई कि इन सर्विस कोटे के तहत ज़ेर तालीम उम्मीदवारों की मदद से यूनिवर्सिटी के बाज़ अमले ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में 25 सवालात का अफ़शा किया, जो जगतियाल के अलावा अशवारोपेट और वरंगल के ज़राई कॉलेज के उम्मीदवारों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए भेजे गए। इस पूरे अमल में भारी रकम के लेन देन की भी तस्दीक हुई है। तहक़ीक़ात के नतीजे में BSc तीसरे साल के 35 सर्विस उम्मीदवारों के दाखिले मनसूख कर दिए गए हैं और इन्हें महकमे ज़राअत के हवाले कर दिया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अल्दाज जनाया के मुताबिक एक आला ओहदेदार के बशमूल दीगर 4 मुलाज़मीन को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि भारतीय नारायणा भट्ट को रुख्सत पर भेज दिया गया।